Assalamu alaikum everyone. This is Zara Essen and I am currently working as an associate member at the Department of Research and Development RSRS. I welcome you all to the Statistical Masterclass Day 2. Ravelian Student Research Society is determined to help medical students advance their prospects in research. For this cause, RSRS organizes various seminars, webinars, and offers research mentorship all around the year. I'm really delighted to introduce our speaker for today's masterclass. Taiba Idris is currently working as the Vice President of RSRS. She has published various researches in national and international journals and is also a part of Brainbook. She has great expertise in presenting researches both nationally and internationally. Her contribution to book chapter on neonatal health practices by Intech Open is remarkable. Today's webinar on inferential statistics is a great learning experience for each and every one of you. Over to you, Taiba Api. Assalamu alaikum everyone and good evening to you all. We are really sorry for the inconvenience. Actually, end time पे हमारे कुछ मसला हो गया था. But I hope that you all have an amazing session. Inshallah. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है inferential statistics पे और I know थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है but इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जितना आपके लिए आसान हो सकता है उतना आसान हो सके. So yeah, okay. So first of all, starting with these two very beautiful ayahs from the Holy Quran. जो research है, ये man's search for meaning in the seeming chaos, it is not a new thing. Okay? It's something that has gone on for as long as man has existed. And even in Quran Pak, we are urged again and again and again to think and to ponder and to look at things. Even बहुत सारी जगहों पे जो एक असल मोमिन है उसकी पहचान भी यही बताई गई है कि ये वो लोग होते हैं जो चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में सोचते हैं और उनमें अल्लाह की निशानियों को ढूंढते हैं. सही है. तो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो ऑलवेज डू इट विद द माइंड सेट कि आप एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं to the vast ocean of knowledge that humanity possesses at any time. It's an ocean which is not yet limitless. So आपने research कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, और हमेशा एक बहुत positive attitude के साथ इसको करना है, तो इंशाल्लाह it will be that much more fun and that much more interesting for you. आज हमने करनी है बात inferential statistics पे. So I know daunting concept है काफी, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था शुरू में, समझ ही नहीं आती थी आपको कि क्या करना होता है. So होता ये है कि आपके पास बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जो आप अपनी स्टडीज पे लगा सकते हो, ठीक है, एंड यू गो टू SPSS एंड यू सी ऑल दीज न्यू नेम्स एंड इट कंफ्यूजेस यू सो मच. आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा टेस्ट लगाना है, बिकॉज आप जो भी टेस्ट SPSS कहते हो वो आपको लगा के दे देता है, ठीक है, और आपको देयर इज लाइक अ मल्टीट्यूड ऑफ टेबल्स इट गिव्स यू एंड मल्टीट्यूड ऑफ वैल्यूज. सो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को जितना सिंप्लीफाई आपके लिए कर सकते हैं वो करें, बिकॉज दिस इज लाइक अ रैबिट होल. You can go as deep as you want. So yeah, and you never stop learning new things about inferential statistics. Even when I was preparing this presentation, तो मुझे भी बहुत सारी नई बातें पता चल रही थी. Okay, सबसे पहले देखते हैं कि inferential statistics होती क्या है. नाम से पता चल रहा है, it's a branch of statistics जिसमें you are making some inferences. सही है? Using various analytical tools about the population data using sample data. चार बातें आ गई. It uses tools जैसे हमारे tests हैं, statistical tests. You are making inferences. सही है, आप कुछ assume कर रहे हो, but that assumption is not just in the air. It has some backing. You are using the sample data. आपके पास बहुत थोड़े से लोगों का data है और उससे आप एक inference draw कर रहे हो about the whole population. That is the importance of inferential statistics. अच्छा, अब इसकी further दो types होती हैं. एक होती है hypothesis testing और एक होती है regression analysis. हमने आज इंशाल्लाह डिस्कस करना है हाइपोथेसिस को और रिग्रेशन एनालिसिस इंशाल्लाह कल आपके साथ फिजान फसल डिस्कस करेंगे. हाइपोथेसिस टेस्टिंग नाम से पता चल रहा है क्या होगा. इसमें आपने एक हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है, और फिर उस हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना है कि इज इट वैलिड, इज इट और इज इट नॉट. सही है, इस पर हम आगे भी बात करते हैं. ये एक तस्वीर थी जो कि काफी अच्छी मुझे लगी. इट टेल्स यू कि पॉपुलेशन, जब आप थोड़े से लोगों को लेते हो to get their data, that is sampling,
आपको ये डाटा मिल जाता है, उसके ऊपर जो आप स्टैट्स अप्लाई करते हो दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये कल आपको सुमैया फातिमा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन अ लॉट ऑफ डिटेल। और जब आप उस सैंपल के डेटा को यूज करके दोबारा पॉपुलेशन की तरफ आते हो, दैट इज वेयर इन्फरेंशियल स्टार्ट्स कम्स इनटू प्ले। तो हाइपोथेसिस की भी हमने बात की। ये क्या होता है? इट्स अ क्वेश्चन दैट यू फॉर्मुलेट, ठीक है। साइंटिफिक मेथड में हमने बड़े अच्छे से हाइपोथेसिस पढ़ा था 9th क्लास में, अगर याद हो किसी को। उस पे इट वाज अबाउट मलेरिया, राइट। और एक इट्स अ क्वेश्चन जो जब आप एक ऑब्जर्वेशन बना लेते हो उसके बाद देन यू मेक दिस हाइपोथेसिस। जो हमने करनी है स्टार्ट्स या जो रिसर्च है बेसिकली, उसमें दो टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस। वन इज द नल हाइपोथेसिस एंड द अदर इज द अल्टरनेट वन। आई नो ये भी कल डिस्कस हुआ था, लेकिन चूंकि हमें भी आगे जाके इसके ऊपर बार बार आना है, इसलिए दिस इज जस्ट लाइक अ स्मॉल रिविजन फॉर यू गाइस। तो जो नल हाइपोथेसिस होता है, अच्छा मुझे कभी भी याद नहीं रहता था कि नल कौन से वाला है और अल्टरनेट कौन से वाला है। तो द सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर इट इज कि जो नल है दैट इज द बोरिंग वन, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इट सेज नथिंग, ये कहता है कि नथिंग इज हैपनिंग, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नथिंग। alternate hypothesis जो है ना, that's the exciting one. It says no, there is a relation, कुछ हो रहा है, there is something interesting happening. अच्छा, अब ये जो null hypothesis है ना, हमें we are saying this is the boring one, but हम इसी के पीछे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जितने भी हम टेस्ट लगाते हैं ना, वो बेसिकली इस नल हाइपोथेसिस के पीछे पड़े हुए होते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू टेस्ट दिस नल हाइपोथेसिस। और जो कट ऑफ वैल्यू हम रखते हैं दैट इज 0.05। ये 0.05 आपने बड़ी जगहों पे देखी होगी। अच्छा, व्हाट डज दिस 0.05 मीन? दिस मीन्स, अच्छा ये 0.05 डेसिमल्स में ना, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, दिस बिकम्स 5%, राइट। सो इसका मतलब है कि देयर इज अ 5% चांस दैट द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो ये इस 0.05 का मतलब ये है। और अगर आपने जो टेस्ट लगाया है उसकी वैल्यू आई है पी वैल्यू लेस देन 0.05, दैट मीन्स देयर इज an even less than 5% chance that the null hypothesis is correct. So now it doesn't make any sense to keep the null hypothesis, right? That is why we reject the null hypothesis when the p-value comes or alpha value comes lesser than 0.05, and we say that the results are significant. इसका मतलब है कि there's a statistically significant relation between the two variables जो हम टेस्ट कर रहे थे। अच्छा, ये आई नो अभी तक थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग होगा। हैंड्स ऑन वाला काम हम थोड़ा आगे जाके स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक्स को एक दफ़ा रिव्यू करना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ डेटा, ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये भी कल आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस हुए थे, लेकिन वंस अगेन हमें आज इसकी ज़रूरत है, तो एक दफ़ा इनको दोबारा देखेंगे। टू मेन टाइप्स ऑफ डेटा होती हैं, एक होता है कैटेगोरिकल और एक होता है न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल कैटेगरीज में होता है, न्यूमेरिकल नंबर्स में होता है। Categorical की further two types हैं, numerical की भी further two types हैं. So categorical is divided into nominal and ordinal. Nominal are those categories which do not have any particular order, right? और ordinal वो होता है जिसमें एक particular ascending या descending order होता है in the categories. जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया तो दैट वुड बी ऑर्डिनल। न्यूमेरिकल वो होता है जो नंबर्स की फॉर्म में। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस वंस अगेन जो समझ लो एक स्केल पे चल रहे होते हैं या एक पूरी रेंज चल रही होती है उनकी, ठीक है। और ये जो नंबर्स होते हैं ये इवन पॉइंट्स की फॉर्म्स में भी आ सकते हैं। जो डिस्क्रीट होते हैं दीज आर होल नंबर्स, लाइक इंटीजर्स होते हैं, सॉरी नॉट होल नंबर्स, दीज आर इंटीजर्स, सही है। दे कैन नॉट टेक द वैल्यूज ऑफ डेसिमल। अच्छा, ये एक अलग बात है कि जो डेटा है वो पेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड भी हो सकता है, और उसको आप पैरामीट्रिक वर्सेस नॉन पैरामीट्रिक के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हो। ये भी कल आपके साथ डिस्कस हुआ था, लेकिन मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ। अनपेयर्ड इज अ सिंपलर वन, वो पहले बताती हूँ। अनपेयर्ड इज एक ग्रुप है ना, वो बस अकेला खड़ा है, ठीक है, उसके साथ देयर इज नो अदर ग्रुप व्हिच इज रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जांपल मैं इसे कहती हूँ कि आई टेक अ डेटा ऑफ I take heartbeats of 100 people, right? So heart rate मैंने अगर 100 लोगों का लिया है, तो this is a data, it is one group, it is unpaired. अब मैं इसी को पेयर डेटा में कैसे कन्वर्ट करूंगी? I'll say कि I take heart rate of the same 100 people before and after exercise. सही है, so मेरे पास two sets of data आ गए और both of them are related to each other. That is paired data. अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ heart rates of 100 males and 100 females, that will also be unpaired data. क्यों? क्योंकि वो मेल्स और फीमेल्स के ग्रुप्स जो हैं उनका डेटा आपस में तो किसी तरह लिंक्ड नहीं है ना, तो दैट इज अनपेयर्ड।
अच्छा, पैरामीट्रिक वर्सेस नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक जो होता है विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है ऐसे जो डाटा हो, ठीक है, मतलब like majority of the values of that data lie near the midline, that is parametric data. और जो non parametric data होता है which is not normal, simplest words में it's skewed either towards the left or it's skewed towards the right, ऐसे हो सकता है वो। ओके, तो ये अब आपके पास एक एक्स्ट्रा बात आ गई। फिर हम आगे चलते हैं। ये मैंने एक एक्टिविटी रखी थी बिकॉज जब ये मैंने स्लाइड्स बनाए थे आई डिडंट नो इट वाज नॉट गोइंग टू बी इंटरैक्टिव टाइप ऑफ सेशन, तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, आप खुद से सोच लो। आई गिव यू लाइक अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले वाला आपके पास आ गया एचपी लेवल्स। एचपी लेवल्स क्या होते हैं? दे कैन बी एनीवेयर, ठीक है, इनकी पूरी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। दे कैन हैव द वैल्यूज ऑफ डेसिमल्स एज वेल। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस डेटा और सब टाइप किसके? न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल कॉन्टिन्यूअस, सही है। फिर आगे कोविड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड बाय ईच हॉस्पिटल। सो नंबर ऑफ वैक्सीन है हर हॉस्पिटल ने दी हैं, सो दीज आर गोइंग टू बी डिस्क्रीट नंबर्स और इनका कोई पर्टिकुलर दे आर नॉट लाइक, मतलब जिस तरह एचपी लेवल्स एक रेंज पे चल रहे होते हैं उस तरह नहीं है। सो ये हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल डिस्क्रीट। फिर ईयर ऑफ मेड स्कूल या ईयर ऑफ स्टडी इन मेड स्कूल। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइनल। तो ये आपके पास आ गया कैटेगोरिकल डाटा, क्योंकि 5 कैटेगरीज हैं एंड इट इज ऑर्डिनल। और फिर प्लेस ऑफ डोमिसाइल जो है वो आपके पास सिटीज होंगी, सही है, सो दैट इज गोइंग टू बी नॉमिनल, सही है। दिस वाज जस्ट अ स्मॉल रिवीजन फॉर यू। अब हम आते हैं मेन काम की बात पे। सबसे पहले व्हाट आर स्टैटिस्टिकल टेस्ट? आप सबने नाम सुने हुए होंगे टेस्ट के, सही है। काई स्क्वायर शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो कि काई स्क्वायर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है। टी टेस्ट होते हैं और भी शायद आपने नाम सुना हो, एनोवा होते हैं। So these are all tests, statistical tests. These are tools that we use in inferential statistics. और ये हम यूज करते हैं मोर स्पेसिफिकली इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया था जिसको आज हमने डिस्कस करना। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है, हम ये यूज क्यों करते हैं? These tests tell us if any independent variable has any statistically significant relation with a dependent variable, या फिर ये हमें डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स को एस्टिमेट करने में भी हेल्प करते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि हार्ट रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, उसके ऊपर हमें डिफरेंस को ये बताने में हेल्प करेंगे क्या वाकई देयर इज अ डिफरेंस और नॉट। फिर अगर हम पेयर्ड डाटा ले रहे हैं, ठीक है, 100 पीपल बिफोर आफ्टर एक्सरसाइज, वो भी इन वे 2 ग्रुप्स हो गए, उसके डिफरेंस को भी बताने में ये हमें हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर हम कोई भी 2 डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, उनका आपस में रिलेशन बताने में भी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, you choose the right test based on your data type. That is the reason कि हमने पीछे डेटा टाइप्स की रिवीजन की है, सही है। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज अ फ्लो चार्ट। इट माइट सीम ओवरवेलमिंग टू यू, लेकिन आई वॉक यू थ्रू इट इंशाल्लाह। और ये ना इन अ वे समरी है उस सब काम की जो आगे हमने करना। 2 लफ्ज यहाँ पे लिखे हुए, एक है प्रिडिक्टिव वेरिएबल और एक है आउटकम वेरिएबल। प्रिडिक्टिव वेरिएबल देखें कौन सा वाला वेरिएबल होता है, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। और जो आउटकम वेरिएबल होता है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लें। अब आपने पहले सबसे पकड़ना है प्रिडिक्टर वेरिएबल को और देखना है कि क्या वो कैटेगोरिकल है या क्वांटिटेटिव है। हम सबसे पहले ले लेते हैं एक कैटेगोरिकल प्रिडिक्टर वेरिएबल। लेट्स सपोज वी टेक जेंडर, ठीक है, मेल्स हो गए या फीमेल्स हो गए। फिर अब हमने देखना है कि जो आउटकम वेरिएबल है वो कौन सा है, इज इट कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव। अब हम पहले लेते हैं एक कैटेगोरिकल आउटकम वेरिएबल है, सपोज हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, सही है, कि उनकी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है, पीएचडी है, व्हाटएवर। एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया जेंडर, दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। जब दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल होना, वी चूज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट which is chi-square test in most of the conditions. This is the simplest condition. दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल आ गए, आपको कोई जरूरत नहीं नॉर्मेलिटी देखने की, कुछ देखने की, वैसे उस पे लगती भी नहीं है, आपने बस उठा के chi-square लगा दिया।
फिर अगर आपका जो आउटकम वेरिएबल है दैट इज नॉट कैटेगोरिकल, इट्स क्वांटिटेटिव। सपोज हम एचपी लेवल्स ले लेते हैं, सही है। सो वी आर सीइंग नाउ द रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड एचपी लेवल्स। अब हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन ऑफ मीन्स टेस्ट, और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल था इसमें कितने ग्रुप्स थे जो एक्चुअली कंपेयर हो रहे थे। यहाँ पे इन्होंने सबसे कम लिखे हुए हैं 2 ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं मेल्स और फीमेल्स, 2 ग्रुप्स हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है, सही है। और अगर मोर देन 2 ग्रुप्स हैं, सपोज हमने यहाँ पे चिल्ड्रन भी ले लिए, तो फिर अब आपने एनोवा लगाना है। ये सिंपलेस्ट वर्ड्स में याद रखें, कैटेगोरिकल प्लस कैटेगोरिकल का स्क्वायर, कैटेगोरिकल प्लस क्वांटिटेटिव, सी के आपके पास ग्रुप्स कितने हैं, 2 ग्रुप्स, टी टेस्ट, मोर देन 2 ग्रुप्स, एनोवा, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी कंडीशन होती है, इफ देयर इज ओनली वन ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं खाली यहाँ पे फीमेल्स लेती हूँ और उनका एचपी लेवल चेक करती हूँ, और मैंने एक मीन वैल्यू सेट कर लिया जो कि पॉपुलेशन मीन है। सपोज देखती हूँ कि जो फीमेल्स हैं क्या उनका एचपी लेवल 12 से ऊपर है या नीचे है या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं वन सैंपल टी टेस्ट लगाऊंगा। टी टेस्ट की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका जो है ना वो आपने याद ऐसे रखना है, कैटेगोरिकल प्लस कैटेगोरिकल का स्क्वायर, कैटेगोरिकल प्लस क्वांटिटेटिव, 2 ग्रुप्स हैं तो टी टेस्ट, मोर देन 2 हैं तो एनोवा। This is the part of this flowchart that we are going to address today, इंशाल्लाह। ये वाला जो पार्ट है ना ये आपके साथ होगा कल डिस्कस। कल आपका टॉपिक जो है वो रिग्रेशन और कोरिलेशन वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका भी बता देती हूँ। सपोज योर प्रेडिक्टर वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जांपल आपने जो लिया है दैट इज हीमोग्लोबिन लेवल्स आपने लिए हैं, ठीक है। और जो आउटकम वेरिएबल है दैट इज कैटेगोरिकल। सो उसके लिए आपने देख लिया, इट साउंड्स वेरी डम बट सपोज हमने ले लिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जो साइंस ऑफ एनीमिया है, ठीक है, जो सिस्टेमिक साइंस ऑफ एनीमिया। अब वो कैटेगोरिकल हो गया, हम क्योंकि हमने खाली प्रेजेंस एब्सेंस रखी है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगेगा। अगर हम यहाँ पे जो आउटकम वेरिएबल है सपोज वो भी क्वांटिटेटिव है, लाइक हम जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं उनका रिलेशनशिप देख लेते हैं विद सपोज फेरिटिन लेवल, सही है। तो अब क्या हो जाएगा, अब फिर आपने दोबारा वही बात प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को देख लेना है कि वो कितने हैं। अगर तो वो एक है तो सिंपल रिग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एचपी विद फेरिटिन, सिंपल रिग्रेशन। अगर आ जाए एचपी प्लस कोई और वेरिएबल डाल लो और उसका इफेक्ट आपने देखना हो तो मल्टीपल रिग्रेशन, सही है। सो ये थोड़ा सा आपके पास एक ओवरव्यू था। इट माइट बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग, डोंट वरी, हमने आगे इसी को डिस्कस करना फर्दर। अच्छा, अब तो आपने ये देखना है कि हर टेस्ट ना आपको 3 चीजें बताएगा, और आपने जब उस टेस्ट को रिपोर्ट करना है तब भी आपने वही 3 चीजें बतानी है। एक तो है वैल्यू ऑफ द टेस्ट, ठीक है, जो टेस्ट की अपनी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मैंने काई स्क्वायर लगाया, मेरे पास वैल्यू आई 3.171, राइट, ये आ गया वैल्यू ऑफ द टेस्ट। फिर एक चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो डीएफसी लिखी होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, सुनने में थोड़ी मुश्किल सी बात लगती है, बट इट इज बेसिकली n-1। अब n क्या है, n इज बेसिकली योर सैंपल साइज, सही है। सो ये क्या होता है आपके पास n-1 वेर n इज योर सैंपल साइज। सो अगर मेरा सैंपल साइज 10 है तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 9। अगर मेरा सैंपल साइज 20 है तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 19। अगर आपको डीएफ ना दी हुई हो तो यू कैन टेल, आप एन भी बता सकते हो, ठीक है। उस टेस्ट रिजल्ट्स को जब आप साइड कर रहे हो ना तो आप खाली एन भी बता सकते हो, बिकॉज एक का डिफरेंस होता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच इज द पी वैल्यू। ये जो पी वैल्यू होती है ना ये एक्चुअली इस स्टेटिस्टिकल टेस्ट की वैल्यू से ही आती है। एक्चुअली मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन हमारे पास ना टेबल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। उस पर हर वैल्यू ऑफ द टेस्ट के लिए एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू पी वैल्यू होती है, और हमने कट ऑफ इसका 0.05 रखा हुआ होता है। मतलब अगर 0.05 से कम आया है पी वैल्यू देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सही है। सिंपलेस्ट आपने ये याद रखना है कि 0.05 से वैल्यू जब भी कम आए तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है, ऑल्टरनेट को एक्सेप्ट करना होता है। ये 3 चीजें आपने हर टेस्ट के अंदर बतानी है जरूर। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू आवर हैंड्स ऑन पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने देखना है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। वंस अगेन द रिविजन, बोथ वेरिएबल्स आर कैटेगोरिकल, सही है। दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, कैटेगोरिकल हैं। और ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है
उसका मतलब ये होता है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स लगते हैं नॉन पैरामीट्रिक डेटा पे, मतलब वो डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। लेकिन ये जो नॉर्मेलिटी वाली बात है ना, ये मोस्टली कैटेगोरिकल डेटा पे अप्लाई नहीं होती। ओके, सो इसीलिए आपको जब आपने chi स्क्वायर लगाना होता है तो यू डोंट नीड टू चेक फॉर नॉर्मेलिटी और एनीथिंग एल्स, और दिस टेस्ट डजंट रिक्वायर यू टू चेक फॉर दैट एज वेल। सो आपने बस इसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी थी, डज द लेवल ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन अचीव्ड डिफर अमंग मेल्स एंड फीमेल्स। ये तो वही एग्जांपल आगे जो ऊपर मैंने बताई हुई थी। देखिए, मेल्स एंड फीमेल्स जेंडर हो गया एक वेरिएबल कैटेगोरिकल, दूसरा लेवल ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन अचीव्ड, ये दूसरा कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया। अब आप आ जाएं अपनी जो है ना फाइल मैंने शेयर की थी उसको खोलें। ये बेसिकली हमारी रिसर्च थी, तो इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च। उसमें से मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए और उन उस डेटा को मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया फॉर योर रिविजन। ओके, हम आ जाते हैं, अभी हमने क्या लगाना है, chi स्क्वायर। हम जाएंगे एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, क्रॉस टैब्स, सही है। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, बट इट्स वेरी सिंपल। आपको आराम से मिल जाएगा ये जब भी आपने करना हो। ओके, अब हमने क्या करना है, हमें दोनों वेरिएबल्स लेने हैं कैटेगोरिकल, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अब हम रोज जो होती है वो ये वाली जगह होती है, ठीक है, और कॉलम्स ये वाली जगह होती है। रोज में हमने लेना है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ले लेते हैं एजुकेशन ऑफ मदर, ठीक है। और जो कॉलम्स में हम ले लेंगे कि वेदर दे वांटेड द प्रेगनेंसी और नॉट, सही है। स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, chi स्क्वायर को क्लिक करेंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डोंट डू एनीथिंग। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, SPSS का मसला पता है सबसे बड़ा क्या है? इसका सबसे बड़ा मसला इज ओवर एनालाइजिंग। मैं चाहूँ तो मैं इन सबको क्लिक कर दूं और मुझे सबके रिजल्ट्स भी दे देगा, बट दैट इज जस्ट गोइंग टू कंफ्यूज मी। You don't need to do extra things because SPSS, it's a software, it doesn't know if you need those things or not, it will just do whatever you tell it to। आप चाहो तो आप सेकेंड ले सकते हो बाकी चीजें में, लेकिन आई डोंट, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स में जाके आपने क्लिक कर दिया chi स्क्वायर को, फिर आप जाते हो ओके पे। एक मिनट। ओके, अब ये आ गया हमारे पास क्रॉस टैब्यूलेशन, एजुकेशन ऑफ मदर एंड वेदर टू वांटेड द प्रेगनेंसी और नॉट। सबसे पहले तो इसने आपको बता दिया कि देखिए आपका n जो था वो 20 था, दैट मीन्स दैट वाज योर सैम्पल साइज, आपके पास सारी वैल्यूज जो थी वो प्रेजेंट हैं, नथिंग इज मिसिंग। अच्छा, ये उसने आपको बाय ग्रुप ब्रेकडाउन भी दे दिया लोगों का। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल जिसके ऊपर लिखा हुआ है chi स्क्वायर टेस्ट, और उसमें से भी सबसे ऊपर वाली लाइन जिसपे पियर्सन chi स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये देखें, वही जो तीन चीजें आ गई मैंने आपको बताई थी, द वैल्यू ऑफ द टेस्ट, द स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट, दिस इज द स्टेटिस्टिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट, राइट। दिस इज द DF which is the degree of freedom, and this is the p value। ये जो significance लिखी हुई होती है ना, SIG, this means significance, this is the p value। so आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, 1.253 which is the value, the degree of freedom is 2, and this is the significance, this is 0.535। क्या ये हमारी कट ऑफ वैल्यू 0.05 उससे ज्यादा है या उससे कम है? दिस इज मच मच ग्रेटर देन 0.05। दैट मीन्स we cannot reject the null hypothesis, that means our results are not significant, सही है। अच्छा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं आपको एक और बात बता दूं, नाम से पता चल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज बेसिकली द नंबर ऑफ वैल्यूज विच कैन वेरी, जो कि चेंज हो सकती हैं आपके डेटा में एंड स्टिल गिव यू द सेम आंसर, ठीक है। तो ये उसने यहाँ पे आपको 2 दी हुई है, मोस्टली दिस इज n-1। अब हम वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पे। तो आप जो हमारा फॉर्मेट है ना वो हम ऐसे करें कि पहले मैं आपको टेस्ट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताऊंगी, फिर हम जाएंगे अपनी फाइल पे, ठीक है, और उधर हम उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद वील कम बैक एंड वील सी हाउ डू वी राइट दैट टेस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, आपने इसको रिपोर्ट कैसे करना है।
सबसे पहले आपने लिखना होता है हमेशा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद आप सैम्पल साइज लिख सकते हो, दिस इज नॉट नेसेसरी वैसे। उसके बाद आपने काई स्क्वायर जो स्टेटिस्टिक आई होती है टेस्ट की वो लिखनी होती है। उसके बाद कॉमा डाल के पी वैल्यू लिखना होता है। सही है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपके लिए। Chi-square test of independence was performed to examine the relation between education of mothers and the desirability of pregnancy. ये मैंने ब्रैकेट्स में इसलिए डाले क्योंकि यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल्स लिखने होते हैं। The relation between these variables was not significant, not again in brackets because it indicates it can be significant not or it cannot be significant. You mold them according to your own data. अच्छा, अब हम यहाँ पे डालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम थी हमारी 2, एन क्या था हमारा 20। फिर उसके बाद आपने आपने x2 यहाँ x स्क्वायर लिख दिया ना, उसके बाद आपने यहाँ पे एक डाला हुआ है इक्वल, यहाँ पे आपने स्टार्ट लिखनी है। इट वाज 1.2 समथिंग जो भी थी, भूल गया, 1.253 और आपने फिर p वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे p वैल्यू थी हमारी 0.53 समथिंग। दैट मीन्स आवर रिजल्ट वाज नॉट सिग्निफिकेंट। I'll go and I'll repeat it once again. You go to analyze, you go to descriptive stats, you go to cross tabs. यहाँ रोज में आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डालना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डालना है, कॉलम्स में आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डालना है। यू गो टू स्टेटिस्टिक्स, यू टिक द chi स्क्वायर, कंटिन्यू, ओके। फिर क्या होता है आपके पास जो ये आउटपुट स्क्रीन होती है ना आपकी आउटपुट विंडो, उसमें आपके पास आ गया। यू नीड टू फोकस ओनली ऑन दिस वन लाइन। ओहो, सबसे ऊपर वाली वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एसिम्प्टोमेटिक, ठीक, एसिम्प्टोटिक सिग्निफिकेंस। ये हो गया आपका chi स्क्वायर। इसके बाद अब आपका chi स्क्वायर में मसला नहीं रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी गो ऑन टू द टी टेस्ट्स। अच्छा, टी टेस्ट्स क्या होते हैं? ये आप लगाते हो, सब टी टेस्ट आप कब लगाते हो? when one variable is categorical and one variable is numeric, ठीक है। अच्छा, अब ना आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा टी टेस्ट लगाना है। टी टेस्ट की 3 सब टाइप्स हैं, वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट और पेयर्ड टी टेस्ट। ये आप डिसाइड करते हो बेस्ड अपॉन द ग्रुप्स ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सही है। सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है आपके ख्याल में? न्यूमेरिक वेरिएबल को तो हमने साइड पे रख दिया, वो है न्यूमेरिक, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है। हम कैटेगोरिकल वेरिएबल को देखते हैं। द सिंपलेस्ट केस वुड बी व्हेन यू हैव ओनली वन नंबर, वन ग्रुप नंबर, ठीक है, नॉन पेयर डेटा, एक ग्रुप है। एग्जाम्पल देखें, इज द एवरेज हाइट ऑफ वुमेन ग्रेटर देन 160 सेंटीमीटर? अच्छा, अब देखो आपके पास यहाँ पे ग्रुप एक है, तो आपको कोई रेफरेंस वैल्यू तो चाहिए होगी, और जो रेफरेंस होती है ना वो आप लेते हो पॉपुलेशन मीन से, ठीक है। वो आपने मतलब आपकी स्टडी से आपको नहीं मिलती, वो आपने पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करना होता है अपनी स्टडी के मीन को। अच्छा, फिर है दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, इज द न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट ऑफ पाकिस्तान ग्रेटर देन 40 per thousand live births? Spoiler alert, it is greater than 40. It's actually 42, which is very alarming. Okay, but that's another discussion. अब हम जाएंगे अपनी फाइल पे। We go to analyze, we go to compare means, we go to one sample t-test। सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अपना कोई न्यूमेरिक वेरिएबल जो है वो आपने टेस्ट वेरिएबल में डालना है और आपने टेस्ट वैल्यू लेनी है। सही है। सपोज मैंने जो एक्चुअली वेरिएबल डाला ना, दिस इज द ईपीडीएस स्कोर व्हिच स्टैंड्स फॉर एडिनबरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्केल स्कोर, जिसमें आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन को स्कोर करते हैं। सही है। अच्छा, अब सपोज मेरे पास जो पॉपुलेशन मीन है ना दैट इज 15, ठीक है। स्कोर पे जो इस स्केल पे जो मैक्सिमम अटेनेबल स्कोर होता है वो 30 होता है, और मैं एज्यूम कर रही हूँ फॉर दिस फॉर द पर्पस ऑफ दिस मास्टर क्लास की जो हमारी मीन वैल्यू पॉपुलेशन मीन दैट इज 15। मैं ऑप्शंस में जाऊंगी, मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल लूंगी 95%, ठीक है। उसके बाद मैं कर दूंगी ओके। अच्छा, अब ये देखिए, उसने मुझे वन सैम्पल स्टेटिस्टिक्स दे दी, उसने मुझे एन दिया
उसने मुझे मेरी पॉपुलेशन का मीन दे दिया, मेरे सैंपल का मीन। इट गेव मी द मीन ऑफ माय सैंपल एज 8.45। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन दे दिया। उसके बाद आप आओ, एक्चुअली ये जो डब्बा है ना, इस पे आपने देखना है जिस पे वन सैंपल टेस्ट लिखा है। दिस इज पी, which is the statistical value of the test. This is the degree of freedom, and this is the significance value, p value basically. ये कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं, आप चाहो तो इनको रिपोर्ट कर दो। अच्छा, अब ये देखो 0.004, इज दिस ग्रेटर देन और लेसर देन 0.05? It's much lesser than 0.05. What does that tell us? That tells us कि हम अपने null hypothesis को reject करेंगे यहाँ। अच्छा, इसमें सोचो इस कंडीशन में हमारा null hypothesis क्या बना हुआ होगा? The question that we were testing was basically ना, is the EPDS score greater or lesser than 15? तो null hypothesis ये assume कर रहा था no, it is not different from 15, सही है। और हमारे अब वो वैल्यू जो आ गई दैट इज वेरी लेस, दैट मीन्स वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और ये बेसिकली सिग्निफिकेंटली ये बता रही है कि जो हमारी पॉपुलेशन का मीन है ना, इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द, मतलब हमारे सैंपल का मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पॉपुलेशन मीन, सही है। तो अब हमारे पास आ गया सिग्निफिकेंट आंसर। अब हम देखते हैं कि हमने इसको रिपोर्ट कैसे करना। A one-sample t-test was performed to evaluate if there was a difference between EPDS scores of our sample and the general population. The mean EPDS scores in our sample, यहाँ पे आपने mean लिखना है और साथ standard deviation. Mean हमारा था 8.45 something, right? और जो हमारी standard deviation थी that was 8.88, ठीक है? ये हमने यहाँ पे लिख दी। It was significantly less, significantly more, or it was not significantly different. In our case, it was significantly less than the EPDS scores of general population. इसमें यहाँ आपने फिर वही करना है कि उसका जो है आपने बताना है कि जो पॉपुलेशन उसका मीन था दैट वाज 50, ठीक है, जो पॉपुलेशन मीन था। फिर अब आपने क्या करना है, वही जो 3 चीज़ें आपने बतानी होती हैं, और वो कैसे बतानी होती हैं, तरीका एक ही है। जो डीएफ होती है ना, व्हिच इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो आपने हमेशा ब्रैकेट्स में लिखनी है, ठीक है? उसके आगे आपने जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो लिखनी है, और उसके आगे आपने पी वैल्यू लिखनी है। इन आवर केस विल राइट इट एज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी हमारी 19, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की हमारे पास वैल्यू आई थी दैट वाज माइनस 3.298, और पी वैल्यू हमारे पास इट वाज सिग्निफिकेंट, इट वाज 0.004, सही है। ये हमने रिपोर्ट कर दिया कि हमने टी टेस्ट किया था। अच्छा, आई होप कि ये आपके लिए ओवरवेलमिंग नहीं हुआ। मैं एक दफा इसको रिवाइज कर देती हूँ। वन सैंपल टी टेस्ट, वन सैंपल मीन्स देयर इज ओनली वन ग्रुप, इट्स नॉन पेयर्ड। टी टेस्ट लगाना है तो मतलब एक वेरिएबल न्यूमेरिकल होगा और एक कैटेगोरिकल होगा। इसके अंदर आप एक पॉपुलेशन मीन आपके पास होता है। आपने क्या करना है, टेस्ट आपने लगाया, आपने उसकी 3 चीज़ें ही आपने वहाँ से लेनी है, द एक्चुअल टेस्ट स्टैटिस्टिक, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द सिग्निफिकेंस। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस सिग्निफिकेंस? If this p value becomes, it comes out to be less than 0.05, that means there is a significant difference between your mean and the population mean. Suppose मैंने यहाँ पे टेस्ट वैल्यू ली हुई होती ना 10, तो शायद मेरी सिग्निफिकेंस जो यहाँ पे p वैल्यू है वो आती 0.1 समथिंग, इट माइट नॉट हैव बीन सिग्निफिकेंट। उसका क्या मतलब होता? उसका मतलब होता there is no significant difference between my mean and the population mean, सही है? It's very simple. आप आराम आराम से इसको प्रोसेस
ओके, अब हमने अगले पे जाना है, which is independent sample t-test. इंडिपेंडेंट सैंपल, ये मैंने इसको ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ जगहों पे ये खाली टी टेस्ट भी लिखा हुआ होता है, कुछ जगहों पे इसको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी लिखा हुआ होता है, तो बोथ ऑफ दीज आर इट्स नेम्स। ओके, अब हम इसको देखते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल, नाम से क्या समझ आ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे दो सैंपल्स हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सही है? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। एक वेरिएबल तो न्यूमेरिकल है, वो हमें पता है, दूसरा कैटेगोरिकल है। अब कैटेगोरिकल की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? कैटेगोरिकल वेरिएबल इज नॉन पेयर्ड। नॉन पेयर्ड, इसको एक सेकंड के लिए प्रोसेस करें। नॉन पेयर्ड मतलब देयर आर टू ग्रुप्स, ग्रुप नंबर इज टू ग्रुप्स, और वो दोनों आपस में लिंक नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आर मेन टॉलर देन women? सो नाउ वी हैव टू ग्रुप्स, मेल्स एंड फीमेल्स, और ये तो हमारा हाइट आ गया। इज देयर मोर लोड शेडिंग इन आवर्स? तो ये हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल बन गया। इन एरिया ए और एरिया बी, ये हमारे दोनों बन गए इंडिपेंडेंट, जो हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, नॉन पेयर्ड। इस तक भी मेरे घर में लोड शेडिंग हुई हुई है, दैट इज हाई। जब ये मैं लिख रही थी तो मेरे जहन में आया दिस एग्जाम्पल। सो ये वाला ना थोड़ा ज्यादा आसान होता है लगाना वन सैंपल से, आयरॉनिकली। अच्छा, अब ये मैंने एक चीज लिखी हुई है बीच में, मैन विटनी यू टेस्ट इज द करिस्पॉन्डिंग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये आपको कल सुमैया ने भी बताया था नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का। मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये हम लगा तो देते हैं, लगाते तब है जब हमारी नॉर्मल डेटा इज नॉट नॉर्मल, बट दे आर वीकर, ठीक है? बिकॉज अच्छा, अब ये वीकर है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या वैल्यू जो सिग्निफिकेंट हमें दे रहे हैं, क्या वो एक्चुअली सिग्निफिकेंट है भी या नहीं, सही है? तो हम लोग पहले ना, ये मैं आपको बात बताना भूल गई कि देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अप्लाइंग दीज टेस्ट, दीज टी टेस्ट। ये पैरामीट्रिक टेस्ट है ना, तो दैट मीन्स योर डेटा हैज टू बी पैरामीट्रिक एज वेल। पैरामीट्रिक का क्या मतलब होता है? नॉर्मल। दैट मीन्स योर डेटा हैज टू बी नॉर्मल। लेकिन एक मसला है कि अच्छा, अगर सपोज आपका डेटा नॉर्मल नहीं आता तो आप उसको नॉर्मल बना सकते हो। ये भी कल आपको सुमैया ने बताया था। इफ यू लाइक फॉरगॉट इट, या फिर आपको याद नहीं है, तो यू कैन रिव्यू हर लेक्चर, और वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? टेस्ट जो आप लगाते हो नॉर्मेलिटी के, तीन तरह से आप देख सकते हो, हिस्टोग्राम से, क्यू प्लॉट से, या आप टेस्ट लगा सकते हो, विच आर शपीरो विल्क टेस्ट, जिसमें एक एग्जांपल है उसकी। तो ये भी आपने ना एक assumption रखनी होती है जब आप टी टेस्ट लगा रहे हो। अच्छा, अब हम जाते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाने के लिए। वी गो टू आवर प्रैक्टिस फाइल। अच्छा, एक तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल अपना ले लेंगे, यही है एडिनबरा स्कोर। जो नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो हम पता कौन सा लेंगे? वो हम यही वाला ले लेंगे, प्रेगनेंसी वांटेड और नॉट। द रीजन फॉर दिस, कैटेगोरिकल है, दो ग्रुप्स हैं, और नॉन पेयर्ड है, सही है? मैं ये भी ले सकती थी, ये भी कैटेगोरिकल है, लेकिन इसमें ग्रुप्स ज्यादा हैं। ग्रुप्स जब ज्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं? एनोवा। यस, हम ये लगाएंगे एनोवा में, हम ये वाला वेरिएबल यूज करेंगे। अभी वी आर यूजिंग दिस वन। अच्छा, अब आप ये देख लो, जो वन है ना प्रेगनेंसी वांटेड में, दोज आर द पीपल हु डिड नॉट वांट द प्रेगनेंसी, और जो जीरो है, दोज हु वांटेड द प्रेगनेंसी। जब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताती हूँ। आप एनालाइज में गए, कंपेयर मीन्स इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। टेस्ट वेरिएबल्स में आपने रखना है the variable that you are testing, which is your EPDS score. ग्रुपिंग वेरिएबल में आपने रखना है जो प्रेगनेंसी वांटेड और नॉट। अच्छा, अभी आपको दो क्वेश्चन मार्क्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। जब तक आप इनको, इस मसले को हल नहीं करते ना, आप ओके भी नहीं प्रेस कर सकते। ये दो क्वेश्चन मार्क्स क्यों बने हुए हैं? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में वी नीड टू ग्रुप्स, राइट? बट SPSS एज ऑफ येट इसको समझ नहीं आ रही कि ये वो दो ग्रुप्स हैं कौन से। हालांकि यहाँ पे मैंने जब वेरिएबल बनाया था तब मैंने लिखा हुआ तो था, व्हाट यू नीड टू डू इज यू गो टू डिफाइन ग्रुप्स। जो ग्रुप 1 है उसको आप अपना, मैंने उसको 0 नाम दे दिया, बिकॉज मेरे जो फर्स्ट ग्रुप है वो मैं येस वाले ले रही हूँ, उनका नाम 0 है, और जो ग्रुप 2 है उसको मैंने 1 दे दिया नाम।
ये दिस इज हाउ यू हैव कोडेड द वेरिएबल। जिस तरह आपने वेरिएबल्स कोड किए होते हैं ना, उस तरह आप इनको नाम दे दो। इफ यू वांट तो आप अपना कट पॉइंट भी रख सकते हो, तो फिर वो ये वाली चीज वॉइड हो जाती है। ये हमने ग्रुप्स को नाम दे दिए, कंटिन्यू। अब ये देखेंगे उसने उसी कोडिंग को यहाँ पे वो ले आया। नाउ इट नोज दैट द फर्स्ट ग्रुप इज द वन जो 0 वाले हैं, दोज हु डिड नॉट वांट द प्रेगनेंसी। 1 जो है वो वाले हैं जो हु वांटेड द प्रेगनेंसी। अच्छा, ऑप्शंस में गए, कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने 95 ही किया। ये वैसे बाय डिफॉल्ट भी 95 होते हैं, यू डोंट नीड टू इवन गो देयर। ओके, वी गो टू ओके। नाउ वी गो। अब देखें यहाँ पे इसने उसको टी टेस्ट कहा हुआ है खाली, और यहाँ पे इसने उसको इंडिपेंडेंट सैंपल्स टेस्ट कहा हुआ है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट्स में किया था। ओके, अब ये देखें, अब उसने क्या किया, उसने जो मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल था उसके दोनों ग्रुप्स की सब डिविजन कर दी, और मुझे हर ग्रुप की अलग स्टैट्स भी दे दी। उसने मुझे बता दिया कि जो ग्रुप वन फर्स्ट ग्रुप था मेरा, उसमें 15 लोग थे, उसका मीन ये था, मीन स्कोर ऑफ ईपीडीएस। और जो दूसरा ग्रुप था मेरा, उसमें 5 लोग थे, उसका स्कोर ये था 13। अच्छा, आपके लिए ये जो है वो इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपने इधर आना है, सही है। इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड वाली लाइन पे आपने जाना है। अच्छा, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड भी एक और, दिस इज लाइक वन ऑफ द कंडीशंस फॉर अप्लाइंग टी टेस्ट अगेन। टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं? एक तो आपको पता है कि एक वेरिएबल जो कैटेगोरिकल होना चाहिए, दूसरा न्यूमेरिकल। फिर कैटेगोरिकल की सब टाइप्स भी हर टेस्ट के अलग होती हैं। फिर होना चाहिए कि आपका कोई आउटलायर्स ना हो बहुत ज़्यादा बड़े। फिर एक नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, जो भी मैंने बता दी। और एक होती है इक्वल वेरिएंसेस, कि वेरिएंसेस इक्वल हो। वेरिएंस एक वैल्यू होती है, जिन्होंने 4th ईयर पास कर ली उनको पता होगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इससे रिलेटेड होती है। तो मतलब इट्स लाइक आप ये कह लो कि इन अ वे ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। तो आपको टी टेस्ट लगाने के लिए ये अज़्यूम करना होता है कि जो आपकी वेरिएंसेस हैं वो बराबर हैं। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट, मोस्टली जो आपका एक्चुअल डेटा होता है ना, उसमें दीज़ आर नॉट इक्वल, बट स्टिल ये बस ऐसे एक प्लस माइनस की बात है। अच्छा, फिर आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक देख ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द सिग्निफिकेंस। यहाँ पे जो पी वैल्यू है दैट इज़ 0.174, दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। व्हाट डज़ दैट टेल अस? We reject the we cannot reject the null hypothesis now. So basically our null hypothesis said there is no difference in the EPDS scores between these two groups. और हमारा टी टेस्ट में यही बात कह रहे हैं कि वाकई कोई फर्क नहीं है। मतलब ईपीडीएस स्कोर्स यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन डज नॉट डिपेंड कि क्या यू वांटेड द प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट। सही है। अब हम करेंगे इसको रिपोर्ट। अच्छा, ये जो लेविन्स टेस्ट लिखा हुआ है ना, ये दिस इज बेसिकली अ टेस्ट फॉर चेकिंग द वेरिएंसेस कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। ये मैं आपको ना एनोवा के साथ बताऊंगी, अभी आपके लिए ओवरवेलमिंग ना हो। अच्छा, टी टेस्ट को एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। यू गो टू एनालाइज, you go to compare means, you go to independent samples t test, टेस्ट वेरिएबल में अपना एक्चुअल वेरिएबल डाला, ग्रुपिंग वेरिएबल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डाला, ग्रुप्स को डिफाइन किया आपने, ओके कर दिया। इट गिव्स यू दीज टू टेबल्स। इधर से आपको स्टार्ट्स पता चल गए, इधर से आपके लिए जो ऊपर वाली लाइन है ना जिसमें उसने इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम की हुई है, वो इंपॉर्टेंट है। चीजें आपने 3 पकड़नी है हर टेस्ट में, द टेस्ट स्टैटिस्टिक, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द सिग्निफिकेंस। अब हम इसको करेंगे रिपोर्ट। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, सो डोंट वरी। आप दिस इज अ स्टैंडर्ड वे टू रिपोर्ट, जो मैंने यहाँ पे डाली है ना, दीज आर लाइक द बेस्ट वेज टू रिपोर्ट द टेस्ट, जिसमें आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आ जाती हैं। An independent sample t-test was run with a confidence interval of 95. It was found that the EPDS scores, इधर हमने अपना डाल दिया जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, in the group who wanted the pregnancy were not significantly higher or lower than those who did not. सही है। यहाँ पे आपने ये सारी स्टेटमेंट लिख दी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डालनी है, विच इज 18। टेस्ट स्टेटिस्टिक हमारी क्या थी, -1.417, और पी वैल्यू थी हमारी 0.14 समथिंग। ठीक है,
इट वाज, अब हम नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कर देंगे, ठीक है? हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंटली हायर होते या सिग्निफिकेंटली लोअर होते, तो इसलिए मैंने यहाँ हायर स्लैश लोअर लिखा हुआ है। दिस वाज इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, ओके? आई होप दिस इज नॉट गेटिंग टू मच फॉर यू गाइस। मैं जितना ज़्यादा इनको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना इन चीज़ों को, मैं उतना सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने कौन सा टेस्ट देखा था? chi स्क्वायर। इसके बाद हम अगली स्टेप पे आए विच वाज वन सैंपल टी टेस्ट। फिर उसके बाद हम आए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। नाम इसका इंडिपेंडेंट, बट इसमें एक्चुअली 2 सैंपल्स होते हैं व्हिच आर अनपेयर्ड। अब हम आएँगे उससे अगले स्टेप पे, जिसमें ग्रुप्स 2 हैं और वो पेयर्ड हैं। सही है? पेयर्ड ग्रुप्स आ गए। अब एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ, वही हार्ट रेट बिफोर आफ्टर एक्सरसाइज़ हमने ले लिया, तो ये पेयर्ड डेटा हो गया। अच्छा, does the student's knowledge of inferential statistics before and after this workshop differ? सपोज़ मैं आप लोगों से ही बिफोर दिस वर्कशॉप मैंने एक आपसे परफॉर्मा फिल कराया होता, जिसमें मैंने आपसे कुछ 10 सवाल पूछे होते, और मैं आपसे आफ्टर दिस वर्कशॉप वही सेम 10 सवाल पूछती, और फिर मैं उस जब मैंने उस डेटा को एनालाइज़ करना होता ना, तो मैं उसके ऊपर पेयर्ड टी टेस्ट लगाऊँगी, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि पेयर्ड टी टेस्ट कैसे लगाना है। इसके लिए अब आपको समझ आ गया ना कि एक कंडीशन क्या होगी कि लोग सेम हैं, द पॉपुलेशन इज सेम एंड द डेटा इज सेपरेटेड। मोस्टली ये होता है कि बिफोर वर्सेस आफ्टर एनी इवेंट वाला डेटा होता है ये, सही है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटरवेंशन करनी है, आपने कोई दवाई देनी है, तो उससे पहले और बाद वाला भी जो डेटा है उसके ऊपर आप पेयर टी टेस्ट लगाओ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब हमें सेम ही वेरिएबल्स चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना ये जो पोस्ट ट्रीटमेंट एडिनबरा स्कोर था, आई जस्ट मेड दिस वेरिएबल अप फॉर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट। सो आई अज्यूम्ड कि सपोज ये उनका डिप्रेशन स्कोर था जब मैंने उनका डेटा लिया, और फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट दी, और उसके बाद 6 महीने बाद मैंने उनका दोबारा ईपीडीएस का डेटा ले लिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दोस टू। अच्छा, इस सब के लिए ना हम ये बात अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके? नॉर्मैलिटी आपके साथ कल डिस्कस होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप इधर गए होगे ना, पहले सबसे आप जाओगे तो आपके पास ऐसी विंडो बनी आएगी। आपने क्या करना है, वेरिएबल 1 में जो प्री ट्रीटमेंट है वो डाल दो, और जो वेरिएबल 2 है उसमें जो पोस्ट ट्रीटमेंट वाला है वो डाल दो। ये इसने आपके पास एक पेयर बना दिया। ऑप्शंस में वंस अगेन द 95% कॉन्फिडेंस, ओके। अच्छा, अब ये देखो, ये इसने पेयर्ड सैंपल के बारे में मुझे बता दिया। दोनों ग्रुप्स में लोग कितने थे, दोनों ग्रुप्स के मीन्स कितने थे, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने मुझे बता दी। दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, राइट? सिंपल मीन, नंबर और डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी दे दिया। ये जो है ना, दिस इज कोरिलेशन। ये आपके साथ कल डिस्कस होगा, लेकिन इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द फ्लो चार्ट, कोरिलेशन हम कब लेते थे? व्हेन बोथ द वेरिएबल्स वर न्यूमेरिकल, राइट, या क्वांटिटेटिव। तो अब हमारे दोनों वेरिएबल्स थे ना क्वांटिटेटिव, दोनों ही स्कोर्स थे। अब इसने क्या किया कि इसने उठा के उसके ऊपर कोरिलेशन भी रन कर दिया। अब कोरिलेशन आपको क्या बताता है? कोरिलेशन आपको बताता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही है, तो क्या दूसरी चीज़ उसके उससे प्रोपोर्शनली बढ़ या कम हो रही है, या इज़ इट डिपेंडेंट ऑन इट और नॉट? मतलब इन द सिंपलेस्ट words, correlations tell you if any two quantitative variables are positively or negatively correlated or not. इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 तक हो सकती है। इस केस में हमारे पास वैल्यू इज़ 0.9, व्हिच इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन ये आपके साथ इंशाल्लाह कल डिस्कस होगा, तो इसीलिए मैं अभी इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही। हमारे मतलब की चीज़ है ये वाला टेबल। अच्छा, अब देखें, उसने हमें दे दिया टेस्ट स्टैटिस्टिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड सिग्निफिकेंस, टू टेल्ड। ये टू टेल्ड क्यों लिखा होता है? टू टेल्ड का मतलब होता है जितने भी हम टेस्ट रन कर रहे हैं ना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने टू टेल्ड टेस्ट रन किए हैं। टू टेल्ड या टू साइडेड का क्या मतलब होता है कि आपने दोनों डायरेक्शंस में देखा है कि व्हेन यू आर सीइंग इफ देयर इज अ पॉजिटिव, इफ देयर इज एक्चुअली एनी सिग्निफिकेंट रिलेशन, तो आप ये देख रहे हो कि क्या एक के साथ
सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी आप देख रहे हो और सिग्निफिकेंटली डिक्रीज भी देख रहे हो, ठीक है। यू आर सीइंग द रिलेशन इन बोथ द डायरेक्शन, इसलिए टू टेल्ड लिखा हुआ होता है, इट्स नॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बस छोड़ दो आप इसे। अच्छा देखो, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गई, सिग्निफिकेंस इज once again it's higher than 0.05. what does that mean? That means कि आपने null hypothesis को reject नहीं करना. You cannot reject the null hypothesis, because अगर मैं इसको translate करूँ ना, तो this value would translate as 17% chance that the null hypothesis is correct. सही है? अच्छा, अब इस केस में हमारे पास null hypothesis क्या होगा? The null hypothesis would have been there is no difference in EPDS scores before and after treatment. सही है? तो वाकई हमारा EPDS scores is not affected by treatment. This is what this paired t-test is telling us. Let's see how do we report it. अच्छा, ये आपको अगर even if you ever like lose this PDF, this file or anything, आप even internet पे भी जाके ना लिख सकते हो how to report this test like chi-square or paired t-test in SPSS in APA style, तो वो आपको बहुत अच्छे से बता देगा. अच्छा, अब हमने इसकी रिपोर्टिंग पे जाना है. A paired sample t-test was conducted to determine the effect of treatment on EPDS scores. The results indicate a not significant difference, yeah, an insignificant difference between EPDS scores before and after treatment. ठीक है, तो अब इसमें आपने EPDS 1 का मीन डाल देना, EPDS 2 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डालनी है. इसका मीन वाज 8.7 समथिंग और इसका जो मीन था वो यानी 7.6, लेट्स अज्यूम इट वाज 7.6 था, वो इसी तरह कुछ आता है. अच्छा, फिर अब आपने क्या करना है, जो टेस्ट की 3 चीजें थी वो आपने इसी तरह रिपोर्ट करनी है. टी लिखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाज 19, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक थी दैट वाज 1.406 something, and the p which was not significant, it was 0.173. Okay? This is how you report a t-test, a paired t-test properly. सही है. अच्छा, अब हम आगे चलेंगे. अभी तक हमने कितने टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं? We have discussed the chi-square, we have discussed the one sample, independent sample and paired t-test. 3 t-test की जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर ली. अब हम आ जाते हैं वेरिएंट्स ANOVA पे. ANOVA की भी फर्दर बहुत सारी सब टाइप्स हैं. सही है, ये मैं आपको वन वे ANOVA बता रही हूँ. अच्छा, I will not go into the further subtypes of ANOVA, and the reason for that is कि max जो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना probably in your undergrad studies, that would be one way ANOVA. और यहाँ पे आपको ये सीखने का फ़ायदा भी होगा. If I go into the further subdivisions, it is just going to confuse you more. अच्छा, एक दफ़ा ना अपने जहन में रिवाइज करें कि हमने कौन सा टेस्ट कब लगाया था. chi-square हमने लगाया when both were categorical. One sample t-test, one categorical, one numerical. Categorical was unpaired, there was one group. Independent samples t-test, एक तो numerical था, जो categorical था, it was unpaired and two groups. Paired t-test हमने कब लगाया? One numerical, one categorical. The categorical was paired and there were two groups. ANOVA अब उससे एक स्टेप आगे है. One numerical and one categorical, and the categorical has more than two groups, but it is unpaired. अच्छा, अगर वो paired हो जाए और more than two groups हो जाए तो फिर वो उससे आगे चला जाएगा. That would be I think multiple repeat ANOVA हो जाएगा. अच्छा, क्रूज-कॉल-वालिस टेस्ट जो है वो इसका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को हम नहीं डिस्कस करेंगे आज ज़्यादा. अच्छा, एग्जाम्पल आप देखें. Is there a difference in stress levels? Stress level, suppose अगर मैं कोई scale use कर रही हूँ, तो this is going to give me a numerical variable. This is going to become a numerical variable. Among first, second, third, fourth and final year, this is a categorical variable जिसके 5 groups मैंने बना दिए. ठीक है? Is there a difference in work-life balance? Work-life balance, suppose मैं कोई questionnaire use कर रही हूँ या कोई scale use कर रही हूँ, which gives me once again score देता है मुझे वो, of doctors of different specialities. Doctors of different specialities being my categorical nominal variable.
सही है? ओके, एनोवा मुझे ना नाम से ही बहुत ज़्यादा डर लगता होता था व्हेन आई वाज़ यंग, मतलब पहले। बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ANOVA stands for Analysis of Variances. Variances आपको पता चल गया कि it's a mathematical value। ये होती है basically standard deviation का square, I think। हाँ, वही होती है। तो आप basically उनको आपस में compare कर रहे होते हो, और analysis of means भी इसको कह सकते हो आप। अब हम जाएंगे अपने प्रैक्टिस फाइल पे। सो एडनब्रा स्कोर हमने लेना है, ठीक है, विच इज़ आवर न्यूमेरिकल वेरिएबल। What do you think? Which categorical variable should we take? Should we take the desirability of pregnancy, which has two groups, or should we take the education of mothers, which has actually four groups? लेकिन हमारे डेटा में जो है वो मतलब 3 ग्रुप्स ही आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई वाला। Yes, we should take this group, the education of mothers. अच्छा, अब हम जाएंगे एनालाइज पे। कंपेयर मीन्स वन वे एनोवा। आज जो हमने सारा काम किया ना, वो हम इस कंपेयर मीन्स के अंदर ही जाके करते रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द chi square which was in descriptive stats। but ओके, अब हमने डिपेंडेंट लिस्ट पे क्या करना है, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डालना है विच इज योर ईपीडीएस स्कोर। फैक्टर में हमने डालनी है एजुकेशन ऑफ मदर, बिकॉज ये हमारा वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसमें हमारे पास ज़्यादा असर है। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्टिव को क्लिक कर लो। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट जो हमने लेवीन टेस्ट देखा था फीचर्स में, मैं खुद ही करके दिया था, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे कर लेते हैं, मैं आपको इसको बता दूंगी। ब्राउन फोर्सेस और वेल्श टेस्ट, दीज आर बेसिकली 2 मोर टेस्ट जो कि आपके एनोवा को इन अ वे सपोर्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। आपको रिपोर्टिंग में आपने इनको इनमें से किसी को भी नहीं बताना। मीन्स प्लॉट भी मैं डाल रही हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगी। इट जस्ट हेल्प्स टू विजुअलाइज एनोवा, ठीक है। अब हम करते हैं ओके। ओके, ये वन वे इसने लिखा हुआ है, वन वे एनोवा। हाँ, यहाँ ये थिंक द लोएस्ट वन, हाँ ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने किस चीज़ को क्लिक किया था, डिस्क्रिप्टिव्स को। उसने हमें क्या किया, डिस्क्रिप्टिव्स की जो है वो ब्रेकडाउन दे दिया। प्राइमरी की कितनी ख़वातीन थी, सेकेंडरी की कितनी, और हायर एजुकेशन की कितनी, उनके मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ब्ला 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 एवरीथिंग। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस व्हिच इज लेवीन टेस्ट। अच्छा, अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर ही है ना वेरिएंस, तो इट्स लाइक रफली यही होगा, मतलब रिलेशन इनका आपस में यही होगा। तो जब हमने लगाना होता है ना ये पैरामीट्रिक टेस्ट, तो ये ज़्यूम के वेरिएंसेस बराबर है, यानी होमोजेनस। लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ मोस्टली होती नहीं है आपके डेटा में। तो आप ये लगा रहे हो वैसे जो टेस्ट ऑफ वेरिएंस है, इसकी आप वैल्यू देखो, इज़ दिस लेसर देन 0.05? यस, इट इज़ लेस देन 0.05। दैट मीन्स वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस हियर। अच्छा, अब समझने की बात है कि इसमें नल हाइपोथेसिस है क्या। So in this case, the null hypothesis is that there is homogeneity of variances. सही है? That is what the null hypothesis says in this condition, and you're rejecting it. That means कि आपका ये टेस्ट आपको ये बता रहा है कि there is no homogeneity of variance. सही है? This is what this significance means. मैंने आपसे बहुत शुरू में कहा था कि p वैल्यू लेस देन 0.05 को आप सिर्फ ऐसे याद रखें कि when it gets less than 0.05 you're rejecting the null hypothesis। इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, अगर उस तरह से आप याद रखेंगे। बिकॉज एक ये जो टेस्ट है लेवीन टेस्ट, और जैसे वो शपीरो टेस्ट होता है, उसमें भी यही होता है कि व्हेन द वैल्यू बिकम्स लेसर देन 0.05 दैट मीन्स नो वेरिएंस की होमोजेनिटी एंड नो नॉर्मैलिटी, ठीक है। लेकिन वो आपको तब सही से समझ में रहेगा जब आप ये याद रखेंगे कि इन दीज केसेस नल हाइपोथेसिस क्या है। Well, this is not a very important thing. This is just a prerequisite for ANOVA। अच्छा, अब हम आते हैं ANOVA पे। ANOVA पे आपने
जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है बिटवीन ग्रुप्स वाली लाइन। सम ऑफ स्क्वायर्स दे दिया इसने आपको, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे दी और वैल्यू दे दी। दिस इज द एफ इज द टेस्ट स्टेटिस्टिक एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस। So finally we have something with a significant value. So अब देखो ये जो 0.028 है ना, इसका क्या मतलब है? ANOVA is significant. मतलब the test ANOVA that we applied, it gave us significant results. इसको इंटरप्रेट अगर हम करें तो इसका मतलब है कि जो डिप्रेशन होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट इज अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इन 3 ग्रुप्स में से कौन से वाला जो एजुकेशन का लेवल है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इसको, जो डिप्रेशन स्कोर्स हैं। सही है? उसके लिए हम और टेस्ट्स रन करेंगे, लेकिन एनोवा का आपने ये देखना है। अगर तो आपके पास ये वाली नॉन सिग्निफिकेंट आए ना, यू जस्ट स्टॉप देयर, यू गो बैक, you report it कि we ran a one way ANOVA with confidence interval this, f हमारी ये आई, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये थी and the p value was not significant। लेकिन अब हमारा आ गया है ये सिग्निफिकेंट आ गया। अब हमें कुछ पोस्ट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं पोस्ट हॉक टेस्टिंग या पोस्ट हॉक टेस्ट। उसका मैं आपको बताती हूँ कि पहले इस टेबल को एड्रेस कर लें। ये जो आपसे 2 टेस्ट मैंने कहे थे ना, 2 एक्स्ट्रा टेस्ट हमने क्लिक किए थे, वेल्च और ब्राउन फॉरेस्ट, ये आपको इनकी देखें, इस वाले की जो है वो वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है ना। तो अगर हमारा डेटा एक्चुअल होता और अच्छा होता तो वो ये दोनों सिग्निफिकेंट आती या दोनों नॉन सिग्निफिकेंट आते। ऐसे ये भी दिस इज लाइक 0.1, हाँ दिस इज अ लिटिल बिट बिगर, बट ये जस्ट आपके एनोवा के रिजल्ट को सप्लीमेंट करने के लिए होते हैं। इन अगर आप ना करना चाहो तो ना करो इनका, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब हम आते हैं पोस्ट हॉक टेस्टिंग पे। पोस्ट हॉक टेस्टिंग इज्यूम करें अभी ये टेबल इधर नहीं है, हमने यहाँ तक एनोवा किया था और उस वैल्यू सिग्निफिकेंट आ गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इन 3 में से कौन सा वाला ज़्यादा जो एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है ईपीटीएस स्कोर। सो वी गो बैक टू कंपेयर मीन्स, वी गो बैक टू वन वे एनोवा। इसमें पोस्ट हॉक पे अब आप जाओगे एंड यू टेक दिस टू की या टू के टेस्ट। ठीक है, टू की बी नहीं, टू के टेस्ट। बाकी टेस्ट भी आप उससे भी कर सकते हो पोस्ट हॉक टेस्टिंग, लेकिन वो थोड़े मुश्किल होते हैं। दिस वन इज द सिंपलेस्ट। सिग्निफिकेंस वैल्यूज मैं आपको खुद ही बताई हुई है, कंटिन्यू आप करोगे। ठीक है, लेकिन मेरा एक्चुअली पहले से ही क्लिक होया हुआ था, तो अब हम इसको ओके नहीं करेंगे क्योंकि वरना वो सारे टेबल्स फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। ये टू केज आ गया। अब देखिए, अब इसने पता है क्या करना शुरू कर दी, आपको द रिलेशन बिटवीन एवरी 2 ग्रुप्स बता रहा है। आपको बता रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी का आपस में रिलेशन एंड इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। प्राइमरी और हायर इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी, ये तो वही वैल्यू रिपीट होगी। सेकेंडरी एंड हायर, ये देखें, ये एक वैल्यू हमारे पास आई है विच इज सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे भी आप वही देखें, बेसिकली रिपीटेशन ये कि हायर और प्राइमरी का जो रिलेशन है दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट, हायर और सेकेंडरी का रिलेशन इज सिग्निफिकेंट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो women with higher education हैं, they are significantly more predisposed to develop postpartum depression than the women with secondary education, not the women with primary education। और किन्हीं 2 ग्रुप्स का आपस में इस तरह का रिलेशन नहीं आया, हायर और सेकेंडरी का आया। ठीक है, इसी रिलेशन की वजह से जो हमारा ऊपर ओवरऑल एनोवा में भी हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही थी, ये सिग्निफिकेंट आई तो फिर हमने और डीपर हम गए। सही है, इफ इट्स कंफ्यूजिंग आई जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। आपने एनोवा लगाया, आप इस बिटवीन ग्रुप्स वाले पे गए। बिटवीन ग्रुप्स का मतलब है कि ये आपको वैल्यू दे रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन वाले ग्रुप्स की। आपने देखा वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, यू वर लाइक ओह इट्स सिग्निफिकेंट, बट which are the 2 groups जिनके दरमियान का जो रिलेशन है which is it is actually significant। फिर आपने पोस्ट हॉक टेस्टिंग की, 2 केस टेस्ट लगाया आपने, फिर आपने सिग्निफिकेंस देखी तो आपको पता चला there is no significant relation between primary and secondary, primary and higher, or primary or secondary and higher, but there is the significant relation exists only between secondary and higher
वाले जो ग्रुप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मीन्स प्लॉट देखें। जो प्राइमरी एजुकेशन वाली मदर्स थी उनका मीन ईपीडीएस स्कोर यहाँ लाई कर रहा है, सेकेंडरी वालों का ईपीडीएस स्कोर इधर लाई कर रहा है, इट्स लाइक इवन लेसर। और जो हायर है उनका देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। सो द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इज बिटवीन द फीमेल्स ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर, राइट। और ये जो है वो सिग्निफिकेंट भी है। अच्छा, अब हम इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं। One way ANOVA was conducted to determine the effect of education of mothers on EPDS scores. The results showed a significant effect. It's not, फिर हम काट देंगे। अब हमने वही करना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डालनी है इधर। I've forgotten what those values were. Degree of freedom was 4.425. Degree of freedom was 2. फिर हमने F की वैल्यू लिखी which was 4.425 और आगे फिर हमने P की वैल्यू लिख दी which was 0.028. ठीक है। फिर हमने आगे लिख दिया कि पोस्ट हॉक was conducted using 2 case test and showed a significant difference between secondary and higher education groups. सही है। अब अगर हम चाहें यहाँ तो यहाँ पे भी हम p वैल्यू जो है वो उसकी डाल सकते हैं। So we reject the null hypothesis that education levels have no effect on EPDS scores. और आप यहाँ पे ये भी लाइन एंड पे लिख सकते हो कि so the females who have a higher education are significantly more prone to develop postpartum depression than those who have secondary education. ठीक है। ANOVA is basically two step इसलिए कि अगर आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू आए तो you just don't even need to go for the post hoc analysis. अच्छा, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के मैंने नाम लिख दिए हैं। मैन विटनी यू विच इज फॉर द इंडिपेंडेंट सैंपल, विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट जो कि आपका पेयर्ड सैंपल के लिए होता है, ट्रूस्कॉल वॉलिस फॉर एनोवा। मतलब इफ एनोवा जिस डेटा पे आपने लगाना है द डेटा इज नॉट नॉर्मल तो यू अप्लाई ट्रूस्कॉल वॉलिस। स्पीयरमैन कोरिलेशन ये आपका होता है फॉर द क्वांटिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ये आपने कल इंशाल्लाह डिस्कस होगा आपके साथ। ये वही बात जो है वो in table form. Okay, so now we come on to the last test for today. This is odds ratio. Odds ratio के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये ना थोड़ा सा एक्चुअली एक डिफरेंट स्टडी टाइप पे लगता है। मोस्टली वी अप्लाई दिस ऑन जो केस कंट्रोल स्टडीज होती हैं वो वाली। अच्छा, दिस इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन एक्सपोजर एंड एन आउटकम। सही है। It represents the odds that an outcome will occur given a particular exposure compared to the odds of the outcome occurring in the absence of that exposure. अच्छा, अब देखें, मैं कहती हूँ कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं they are 10 times more prone to developing lung cancer. ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सपोजर लिया विच इज स्मोकिंग, मैंने एक आउटकम लिया विच इज लंग कैंसर, और मैंने odds बता दिया आपको that the odds are 10 times more that lung cancer will occur in smokers than the odds of the same outcome which is lung cancer occurring in non-smokers. ठीक है। ये मोस्टली हम यूज करते हैं केस कंट्रोल स्टडीज में। केस कंट्रोल स्टडीज फॉर दोज हु डू नॉट नो, दीज आर अ टाइप ऑफ स्टडीज जिसमें आप क्या करते हो कि एक लोगों को लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं उन सब लोगों को लूंगी जिनको लंग कैंसर हुआ है, ठीक है, और मैं वापस जाऊंगी और देखूंगी वापस एज एन आई गो बैक इन टाइम, आई टेक देयर हिस्ट्रीज एंड आई सी कि उनमें से कितने जो थे वो स्मोकर्स थे, कितने नॉन स्मोकर्स थे। फिर मैं कंट्रोल ग्रुप भी लूंगी जिसमें जिन लोगों को लंग कैंसर नहीं होगा, और मैं उसमें भी आई गो बैक एंड आई सी द सेम थिंग। फिर मैं उन दोनों का कंपैरिजन करूंगी तो उससे फिर मेरे पास ये ऑड्स रेशियो निकलेगी। सही है। Mostly we use them in case control, but we also can use them in cross section and cohort studies. Odds ratio, simplest words में अगर आपको इसका background नहीं पहले से पता तो just remember it as this tells you the odds, how much more the odds of something happening in the presence of a specific जो risk factor. सही है।
ये ना बड़ा आसान होता है कैलकुलेट करना। फोर्थ ईयर में हम लोग के लिटरली दिस इज वी गेट दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम्स बिकॉज आप एक 4x4 टेबल बनाते हो, सो कंटीजेंसी टेबल कहते हैं, राइट। और यू आपने इस तरह प्लॉट करना होता है कि जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें पीपल विद द डिजीज, अगले कॉलम में पीपल हु डोंट हैव द डिजीज, और जो रोज है उसमें ऊपर वाली आर दोज हु वर एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर, नीचे वाले में दोज वर नॉट एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। वी नेम देम एज ए बी सी डी और क्रॉस करके ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ऑड्स रेशियो इज ए डी ओवर बी सी, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा है ना सिनेरियो, उसमें अच्छा हाँ पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऑड्स रेशियो 1 आए, दैट मीन्स कि देर आर नो मोर ऑड्स ऑफ द आउटकम हैपनिंग वेदर द रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। एक्सपोजर ने आउटकम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालना। इफ द ऑड्स रेशियो इज मोर देन 1, दैट मीन्स इस फॉर्मूला को देखिए, ऑड्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ अ केस, मतलब एक ऐसा बंदा जिसको डिजीज भी थी और वो एक्सपोज भी था, डिवाइडेड बाय ऑड्स ऑफ अ कंट्रोल बीइंग एक्सपोज्ड, कि कैसा बंदा जिसको डिजीज नहीं थी लेकिन वो एक्सपोज हुआ। इट्स रफली मतलब इसका यही मतलब होता है। आप इसको ऐसे याद रख लो, इफ द ऑड्स रेशियो इज 1 दैट मीन्स दोनों वैल्यूज बराबर हैं, दैट मीन्स देयर इज नो इंक्रीज्ड रिस्क, ठीक है। इफ ऑड्स रेशियो इज मोर देन 1, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 10 की, दैट मीन्स के 10 times risk ज़्यादा है in the presence of that same risk factor. And if odds ratio is less than 1, that means that the risk of developing the disease is lesser in the presence of that factor जो भी हम डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम यहाँ पे जो फैक्टर है ना वो रख लेते हैं एक्सरसाइज, और जो आउटकम है या डिजीज है उसको हम रख लेते हैं डेथ, सपोज, ठीक है। हाउ मेनी पीपल डाइड और उनमें से कितना एक्सरसाइज करते थे ना, उस केस में हमारे पास जो ऑड्स रेशियो है ना वो लेस देन 1 आएगी। दैट मीन्स कि एक्सरसाइज की वजह से डेथ्स कम हुई हैं, सही है। तो ये भी एक केस हो सकता है ऑड्स रेशियो। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी फाइल पे। आई प्रॉमिस दिस इज द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू। अब हमने जाना है एनालाइज पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जो हमने काई स्क्वायर वाला काम किया था ना, उधर हमने जाना है, नहीं सॉरी एक्सप्लोर पे नहीं, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्रॉस स्टैट्स। अब आपने अपने जो दोनों फैक्टर्स हैं वो रखने हैं। रोज में आपने कौन से वाला रखना है, जो आपका रिस्क फैक्टर था, सही है, विच वाज द स्ट्रेसर। स्ट्रेस स्कोर किधर गया, ये। और कॉलम्स में आपने रखना है जो पीडीएस स्कोर है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, to apply odds ratio both your variables should have 2 groups only, ठीक है। 3 ग्रुप्स हो तो ऑड्स रेशियो नहीं आप लगा सकते, क्यों? क्योंकि ऑड्स रेशियो में मैंने क्या बताया था, 2x2 टेबल बनाना होता है। 2x2 टेबल तभी बनता है जब दोनों के 2 वैल्यूज हों, लाइक 2 ग्रुप्स हों, सही है। यू गो टू स्टार्ट्स, यू अनटिक द chi स्क्वायर, यू टिक द रिस्क। ये थोड़ी सी डिफरेंट याद रखने वाली बात है। ऑड्स रेशियो के नाम से कोई डब्बा नहीं है एसपीएसएस में। इट बेसिकली कॉल्स इट रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क जो है वो हम निकालते हैं कोहॉर्ट स्टडीज के लिए, बट यहाँ इसका नाम वही होता है। रिस्क आप टेक रिस्क करते हो, इट गिव्स यू द ऑड्स रेशियो। यू गो, यू क्लिक ओके। अच्छा, अब ये आ गया आपका 2x2 टेबल। अब याद करें फॉर्मूला वाज ए डी ओवर बी सी। इससे ही हम यहाँ से खुद ही ऑड्स रेशियो निकाल सकते हैं। 12 times 3 divided by 4 times 1. What would that come out to be? 12 times 3 is 36 divided by 4, 9. ये देखें, odds ratio is 9. Odds ratio for TSS categories versus stress. और ये आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, इसको भी आपने रिपोर्ट करना है। दिस इज द ओनली थिंग विच यू आर कंसर्न विद, नीचे वाले को छोड़ दें। ओके, अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे 0.717 और 113। ओके, वील गो बैक। इसको हमने रिपोर्ट कैसे करना, रिपोर्ट हमने करना है कि देयर वर 9 times greater odds of developing postpartum depression in women with severe stress than those with mild moderate stress prepartum.
एक जो हमारा ग्रुप था ना, इट वाज द वुमेन हु हैड सिवियर स्ट्रेस, जो दूसरा ग्रुप था वो था जिनका माइल्ड या मॉडरेट स्ट्रेस। ठीक है, अब आपने यहाँ और रेशो की वैल्यू लिखनी है विच वाज 9.0। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आपने इसको लिया है, और यहाँ आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यूज थी ना वो रिपोर्ट कर देनी है, 0.717 से लेके 113 पॉइंट जो भी थी। सही है, दैट इज हाउ यू रिपोर्ट काई स्क्वायर। काई स्क्वायर नहीं, सॉरी, ऑड्स रेशो को रिपोर्ट करना बड़ा आसान है। So we did a total of how many tests today? 6 tests. We discussed chi-square, did 3 subtypes of t-tests, ANOVA and odds ratio. Okay, so this is all from my side. Now I think we can start taking the questions. Assalamu alaikum. We will now move on to the Q&A session, and please drop your questions in the chat box. The first question is, does the type of test makes the research more valuable? If yes, then which test is most valuable? Okay, so देखिए, आपने जो टेस्ट डिसाइड करना है ना वो आपने अपनी डेटा टाइप पे डिसाइड करना है, सही है। If my data has variables which are all categorical, तो मैंने उस पर हमेशा chi-square ही लगाना है। What makes my study more valuable is the fact कि मैंने data collection अच्छी की हुई हो, ठीक है, मेरा questionnaire अच्छा हो, strong हो, और दूसरा ये कि मैंने जो रिपोर्टिंग की है वो अच्छी हो, मेरी जो मैंने रिजल्ट्स अपने लिखे हैं वो अच्छा हो, मैंने आर्टिकल अच्छा लिखा हो। आप बिलीव करें, बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती हैं which do not which have only like descriptive statistics, right? ठीक है, उनमें ये इन्फरेंशियल उन्होंने की भी नहीं हुई होती, या उन्हें क्या होता है कि जस्ट टू का स्क्वायर। तो even then their studies are very good. So what makes your study more valuable is not the test, but applying the right test, like fulfilling all the assumptions that it requires and reporting it correctly. Next question. The next question is, how to get the population mean or the source of population mean? ओके, दिस इज फॉर द इंडिपेंडेंट, सॉरी, वन सैम्पल टी टेस्ट, उसके लिए आप पूछ रहे हो ना, वो आपको पता मिल जाता है, ठीक है। इट इज रिपोर्टेड बाय लाइक बिगर स्टडीज या जो भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी पॉपुलेशन में मैं ईपीडीएस स्कोर्स ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं पाकिस्तान के जो मीन ईपीडीएस स्कोर्स हैं वो ले लूँ, बट दिस इज लाइक नॉट अ गुड एग्जांपल बिकॉज एक थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी थी। फॉर एग्जांपल, मैं हीमोग्लोबिन लेवल्स ले रही हूँ, ठीक है, मेजर कर रही हूँ अपने पॉपुलेशन के मदर्स के अंदर, ठीक है। तो आई जस्ट सी, मैं ढूंढूंगी जो एक्चुअल स्टैट्स हैं कि पाकिस्तान की जो मदर्स हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड ट्राइमेस्टर जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं उनका कितना होता है हीमोग्लोबिन लेवल्स, मैं इसके साथ कंपेयर कर लूंगी। यू गेट दी स्टैट्स फ्रॉम द रिसोर्सेज जो एक्चुअल होते हैं। Can you जी, please नेक्स्ट। repeat ANOVA test and results more specifically? ओके, ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, डू दे स्टिल वांट मी टू रिपीट इट, बिकॉज मैंने ये काफी दफा रिपीट किया था, लेकिन आई जस्ट डू इट अगेन। सो वन वे एनोवा, किधर गया अनोवा टेस्ट को? हमने ये बात कर ली थी कि लगता किस टाइप ऑफ डेटा पे। व्हेन वन ऑफ योर वेरिएबल्स इज न्यूमेरिकल, वन इज कैटेगोरिकल, द कैटेगोरिकल वेरिएबल इट हैज ग्रुप्स मोर देन 2, ठीक है। 2 ग्रुप्स क्योंकि अगर होते तो हम टी टेस्ट लगा लेते, लेकिन इसके ग्रुप्स मोर देन 2 हैं। अच्छा, अब मैं इसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेती हूँ। इसके रिजल्ट्स आई नो थोड़े से वो कंफ्यूजिंग हो गए थे। आपने ना फोकस किस चीज पे करना है? आपने सबसे पहले देखना है ये वाला एनोवा का जो टेबल है जिस पे लिखा हुआ है बिटवीन ग्रुप्स। ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताया कि हर टेस्ट की 3 चीजों पे आपने फोकस करना है, द टेस्ट स्टैटिस्टिक, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड द सिग्निफिकेंस। अभी देखिए इसकी जो वैल्यू आई है, पी वैल्यू, दैट इज लेस देन 0.05, राइट? दैट मीन्स द रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट। अब मुझे एक पोस्ट हॉक एनालिसिस करना है, ठीक है। पोस्ट हॉक एनालिसिस कैसे होता है? आई गो टू एनालाइज, आई गो टू कंपेयर मीन्स, आई गो टू एनोवा। एक सेकंड में पहले इनको अनटिक कर दूं, सारे डिब्बे होना शुरू होंगे।
मैं पोस्ट डॉक पे जाती हूँ, आई क्लिक दिस टेस्ट, दिस स्पेसिफिक टेस्ट, आई वांट टू रन ओनली दिस। अच्छा, अब वो ये जो टेस्ट मैंने रन किया, अभी मुझे मल्टीपल कंपैरिजंस देना शुरू हो गया। मुझे एनोवा की इस वैल्यू ने क्या बताया था? एनोवा ने मुझे ये बताया था कि देखो आपका जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस व्हिच एग्जिस्ट्स बिटवीन द ग्रुप्स, राइट? पोस्ट डॉक टेस्ट मुझे अब ये खोल खोल के उसको बता रहा है कि कौन से वाले वो दो ग्रुप्स हैं जिनके दरमियान में एक्चुअली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप एक काम करो, एक पेपर और पेंसिल लो, ठीक है? उस पे आप लिखो द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसकी सिग्निफिकेंट जो वैल्यू आ रही है वो लिखो, दैट इज 0.974। फिर आप वैल्यू लिखो बिटवीन प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, उसकी वैल्यू लिखो वो कितनी आ रही है, 0.172। अब हमारे पास एक तीसरा ही कंपैरिजन बच गया विच इज बिटवीन सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, उसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 0.025। ठीक है, यही तीन ग्रुप्स थे ना, और यही तीन इनके दरमियान में आपस में कंपैरिजन हो सकते हैं। अब आप देखो इन तीनों ग्रुप्स की अलग अलग पी वैल्यूज को देखो, 0.974, इज इट सिग्निफिकेंट? नो, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between mothers of primary education and secondary education with respect to EPDS scores। मतलब जो प्राइमरी या वर्सेस सेकेंडरी वाली मदर्स है ना, उनमें डिप्रेशन का कोई इतना रिलेशन नहीं है। प्राइमरी वर्सेस हायर की वैल्यू देखो, इट्स अगेन नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, दैट मीन्स ये भी इतना अफेक्ट नहीं हो, मतलब जो डिप्रेशन है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस कंपैरिजन एज वेल। तीसरा कंपैरिजन लाओ, सेकेंडरी वर्सेस हायर, उसकी वैल्यू देखो, this is the only thing which is significant। So now we can say that our post hoc analysis has shown कि जो females या mothers with higher education are more prone या are more जो है वो हाँ are more prone to develop postpartum depression than the mothers with secondary education। ठीक है, अच्छा अब आप मुझसे ये भी कह सकते हो कि this significant value, why can this not go the other way, and why can this not mean कि जो secondary वाली mothers हैं वो ज़्यादा prone है to develop depression than higher, क्योंकि value तो significant है। उसके लिए हमें वो means वाला plot help करता है। किधर गया, ये देखो, score EPDS score in females with higher education देखो कितना ज़्यादा है। this means plot shows us कि देखो जो EPDS score है ना वो हाईली एजुकेटेड वुमेन में ज्यादा है, और वो जो पोस्ट डॉक एनालिसिस हमें बता रहे हैं कि ये जो ज्यादा है दिस इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट। सही है, आई होप यू गेट दिस नाउ। एकदम मैं दोबारा बता देती हूँ, आपने एनोवा रन किया, आपने सिग्निफिकेंस देखी, it's less than 0.05, it's significant, you need to go ahead, it's more than 0.05, you just stop there, आप रिपोर्ट करते हो पीछे जाके, आप वैल्यू ऑफ एफ लिखते हो, डीएफ लिखते हो, सिग्निफिकेंस यू से इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब हमारे केस में चूंकि सिग्निफिकेंट आ गई तो वी नीड टू डू ग्रुप बाय ग्रुप एनालिसिस। उसमें आप देखते हो कौन से वाला ग्रुप जो है वो एक्चुअली आपस में उनका सिग्निफिकेंट रिलेशन है, एंड देन वी गो एंड रिपोर्ट दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Do we have any more questions? If so, then please type them in the live chat. It appears that we do not have any more questions. So I will just conclude the session. Thank you so much, Ms. Taiba Dries, for joining us today. It was a very, very informative session on inferential statistics. I'm very sure that inferential statistics are very clear to all of us now. Thank you everybody for joining us today, and please stick around for the third class of Statistical Masterclass for correlation and regression tomorrow.
And thank you very much, and Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो आपके तो you can ask always. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।